Good morning, dear students. Our today's topic is admission of a partner. Admission of a partner is basically the reconstitution of the firm because with the admission of a partner, existing agreement ends. Like you did the previous chapter where there was change in profit sharing ratio, and whenever there is changes in profit sharing ratio, that is called reconstitution of the firm. All right. So admission, in when you admit a person, then the old partners also sacrifice something. Suppose there are two partners A and B. They were distributing profits equally. So A was getting half, 1/2. B was also getting 1/2. Now they admitted C, and still the ratio is equal. So now A will get 1/3, B will get 1/3, and C will also get 1/3. So you will see that A has sacrificed something. Earlier he was having half share, now he is having only 1/3 share. So he sacrificed something. So whenever we admit a partner, the ratio which were earlier, the ratio in which the partners were distributing the profits earlier has been changed. So whenever there is a change in profit sharing ratio, the old agreement comes to an end. Partnership का पुराना agreement खत्म हो जाता है and a new agreement takes place. All right. Now look at the third line in the first paragraph. Capital contribution by the new partner includes, see, what the new partner brings in. The new partner brings in capital, and to enter in an existing business, a new partner has to give a share of goodwill. ऑलरेडी उनकी गुडविल ए और बी ने 10 साल से वो काम कर रहे हैं एंड दे हैव अ गुडविल. सी एंटर हो रहा है, सी विल ऑल्सो यूज दैट गुडविल. सो सी विल ब्रिंग अ पार्ट ऑफ द गुडविल. Okay, because the old partners are sacrificing the old share, so in compensation to that share they need a part of goodwill. कि आज तक जो हमने नाम कमाया है, C is going to use that, so he has to give some share. गुडविल का कुछ शेयर वो किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को देंगे. ऑल राइट. नाउ सी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर. कौन एडमिट हो सकता है? कब एडमिट हो सकता है? इफ़ इट इज़ सो अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ये अग्रीमेंट है, अग्री कर रहे हैं वो. नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ द अबव, अगर डीड में नहीं है, इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्री फॉर द एडमिशन, माइंड इट, ऑल द पार्टनर्स. और आपका MCQ में आ सकता है कि देयर आर 10 पार्टनर्स and they want to admit 11th one, and out of old 9 partners are ready to admit the 11th one, but one is not ready. 10 में से 9 लोग राज़ी हैं उसको एडमिट करने के लिए, बट एक राज़ी नहीं है. तो माइंड इट, अगर एक भी नहीं चाहता, एक ने भी अपनी विल नहीं दिखाई एडमिट करने के लिए, तो 11th वन कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप डीड. सो इट कैन कम इन दी MCQ कि 10 में से 9 पार्टनर रेडी हैं एडमिट करने के लिए, बट 1 पार्टनर रेडी नहीं है, तो द न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड. ऑल राइट. नाउ सी, आफ्टर द एडमिशन द न्यू पार्टनर विल गेट 2 राइट्स. क्या क्या राइट्स मिलेंगे? सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको शेयर मिल जाएगा. पहले 2 लोग शेयर कर रहे थे प्रॉफिट को, अब 3 लोग शेयर करेंगे, या 4 लोग, या जो भी एडमिशन हो रहा है. द न्यू पार्टनर विल ऑल्सो बी शेयरिंग द प्रॉफिट्स. राइट नंबर 2, दे विल हैव अ राइट इन दी असेट्स ऑफ द फर्म. पहले जितने भी असेट्स थी उन पर 2 लोगों का राइट था, अब नया पार्टनर आ गया तो 3 लोगों का राइट हो गया. एंड simultaneously when he is having the assets, when he will share the asset, he will also be liable for the liabilities. आप किसी बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, उनकी assets अगर आपकी हैं तो उनकी liabilities भी आपकी ही हैं. all right. now see the last paragraph. The new or incoming partner receives share in future profits.
equal to the sacrifice. See, ओल्ड पार्टनर्स जितना सेक्रीफाइस करेंगे उसका सम टोटल ही नए को मिलेगा. ठीक है, जितना भी ओल्ड ने सेक्रीफाइस किया उसको अगर आप टोटल करेंगे तो वो न्यू का शेयर बन जाएगा. ओके, सी द अमाउंट न्यू पार्टनर्स पेज फॉर, और जो आपके ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो उनको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है न्यू पार्टनर, कुछ पार्ट गुडविल का, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं, वो लेकर आता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन. जब एडमिशन हो जाएगा तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे. सो नंबर 1 इज़ ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट बनेगा. नंबर 2, न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स में उसका शेयर हो जाएगा. नंबर 3, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड अग्रीड. क्या लेकर आएगा वो, 2 चीज़ लेकर आएगा, गुडविल एंड कैपिटल. ओके, सो ही हैज़ टू ब्रिंग कैपिटल. नंबर 4, न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स राइट इन द असेट्स एंड ऑल्सो बिकम्स लायबल फॉर द लायबिलिटीज़. तो गुडविल ले आया, कैपिटल ले आया, अब असेट्स में भी राइट मिलेगा और लायबिलिटीज़ में ही विल ऑल्सो बी लायबल. नंबर 5, एडजस्टमेंट इज़ मेड फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. पुराने जो रिजर्व्स और प्रोविजंस, ये वाला पार्ट आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी किया हुआ है, इनको भी हम या तो ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे या एडजस्टिंग एंट्री करेंगे. दिस यू ऑलरेडी नो. नंबर 6, असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड. ये हम ऑलरेडी चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर चुके हैं. वहाँ आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और असेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू किया जाएगा. नंबर 7, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एंड इज़ पेड टू सेक्रीफाइस पर्सन. दिस ऑल्सो वी नो, गुडविल का ट्रीटमेंट भी होगा यहाँ पर. नाउ सी द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब न्यू पार्टनर आएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम. नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम चेक करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन रही है. नंबर 2, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल को वैल्यू करेंगे और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे. नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ गेन, प्रॉफिट और लॉस. जब आपने रीवैल्यूएशन किया तो उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसको असेस करेंगे. नंबर 4, इफ़ देयर इज़ एनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, कि उसका क्या करना है. Number 5, if there is any reserve accumulated profit or losses, then those also be either distributed or be taken as an adjusting entry. उसकी adjusting entry pass करेंगे. Number 6, adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio. कभी कभी आपकी profit sharing ratio के according capital भी change हो जाती है, तो that has to be taken care of. So these are all the adjustments which you need to make. Okay, I hope this all is clear to you. We will start with the first one, the changes in profit sharing ratio, in the next video and in the next live class. Stay home, stay safe. Thank you.